Yes, students, this is the second part of chapter number 4, Agriculture, from Geography, class 8. We are going to start in this video from types of farming. Types of farming. See here, farming is practiced in various ways across the world. कि सारे वर्ल्ड में जो है वो अलग अलग रास्तों से, वेज से, जो है तरीक़ों से फार्मिंग की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस. व्हाट आर द कंडीशंस on which the farming is depending? First of all, geographical conditions, demand of produce, labor, level of technology, right? Farming can be classified into two main types. How many types of farming? Main types, there are two types. One is subsistence farming and second one is commercial farming, right? uh, what are the conditions on which farming is depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor, level of technology. This is very important, that's why I'm repeating it, so be careful while you will read the video. Subsistence farming, these type of the farming is practiced to meet the needs of the farmers families. जो subsistence farming होती है ये ज़्यादातर वो फार्मर्स करते हैं जो अपने सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. ठीक है. ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट. थोड़ी थोड़ी आउटपुट प्राप्त करने के लिए वो अपने घर का जो गुजारा करने के लिए लो लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और उससे हाउस होल्ड लेबर सिर्फ घर के सदस्य मिलकर ही लेबर करते हैं, जिससे कि थोड़ी बहुत उनकी जो ज़रूरत की जो फार्मिंग है वो हो जाती है. सब्सटेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सटेंस एंड प्रिमिटिव सब्सटेंस. एंड नाउ सी देर आर टू टाइप्स. सब्सटेंस फार्मिंग हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, that there are we can classified into two main types to the farming. One is subsistence farming and second one is commercial farming. Now here there are two types of subsistence farming. They have classified subsistence farming in two types. One is intensive and second one is primitive subsistence farming, right? Now we will read about the both. First of all, we will read about the intensive subsistence agriculture. The farmers cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. अब क्या करते हैं फार्मर्स कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए? दे आर टेकिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, छोटा सा टुकड़ा एक ले लेते हैं, एंड दे आर यूजिंग सिंपल टूल्स and more labor. More labor means they are not using number of people as a laborer. More labor means here they are using this word for hard work, that they are doing more hard work with the simple tools on a small plot. ठीक है. Climate with large number of days with the sunshine, fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. अब यहाँ पर क्या होता है कि क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा दिनों तक सनशाइन रहती है क्लाइमेट में, वेदर में, एंड सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, जिसके कारण उनको साल में एक से ज़्यादा जो एनुअली क्रॉप्स को ग्रो करने का जो है वो मौका मिल जाता है. वो उसी प्लॉट में एक से ज़्यादा फसलों को उगा सकते हैं. यहाँ पर राइस जो है वो मेन क्रॉप है. अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग वीट, मेल, पल्सेस एंड ऑयलसीड्स. ओके. इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. कहाँ पे होती है? वे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ पर मानसून रीजन्स आ जाते हैं. कहाँ पर? साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. नाउ फर्स्ट पार्ट इज इंटेंसिव फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग and second one is primitive subsistence agriculture. There are two types of subsistence agriculture. One is that intensive, second is primitive. Intensive already we have read. Now we are going to start with primitive subsistence. Now there are also two types of this primitive subsistence agriculture. primitive भी दो टाइप किया जाती है. ठीक है. पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे that कि मतलब फार्मिंग दो मेन टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग.
अब सब्सटेंस फार्मिंग जो है वो भी दो के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब जो इंटेंसिव है वो हमने पढ़ ली, प्रिमिटिव जो हमने पढ़नी है वो भी दो के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी भी दो टाइप्स है आगे देख कौन कौन सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है नोमैडिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, ये है कि थिकली फॉरेस्टेड एरियाज अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर ये इसकी प्रैक्टिस की जाती है। These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetable. These are the areas of heavy rainfall. ये जो areas हैं वो क्या है, heavy rainfall यहाँ पर होती हैं, quick regeneration of vegetation, दोबारा regenerate होती रहती हैं vegetations जो हैं। प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फैलिंग द ट्रीज, वृक्षों को काट दिया जाता है, उनको बर्न कर दिया जाता है, फिर उनकी जो ऐश होती है उसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है, जो कि मेज़, जैम, पोटैटोस, खसावा इस मिट्टी के ऊपर फिर उगाए जाते हैं क्रॉप्स जो हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फर्टिलिटी हो जाती है एशेज़ जो हैं ट्रीज़ की मिक्स होने के कारण, तो ये फसलें बहुत अच्छी होती हैं। बट आफ्टर द सॉइल लॉसेस इस फर्टिलिटी, तो क्या होता है, द लैंड इज़ अबंडेंट, मतलब उस लैंड को छोड़ दिया जाता है, एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, फिर वो न्यू प्लॉट के ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है कि एक लैंड के पीस के ऊपर जॉब की, अपना काम किया, फसल उगाई, देन आफ्टर फिनिशिंग दिस जब लगता है उनको कि सॉइल जो है वो अब अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है, तो वो क्या करते हैं, उस लैंड पीस ऑफ लैंड को छोड़कर दे आर मूविंग ऑन अनदर, दैट्स वाई इट इज़ अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देयर इज़ वन अनदर नेम by which we are knowing it, that cultivation is also known as slash and burn agriculture। slash and burn क्यों, क्योंकि इसको ट्रीज़ को जो काट दिया था उसको बर्न किया जाता है, फिर उसके जो एशेस बच जाते हैं उनको स्लैश इसको सारे उसमें मिक्स कर दिया जाता है। डू यू नो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको अलग अलग भी बोला जाता है। कई बार जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग लिखने की बजाय ना क्वेश्चन में डाल दिया जाता है झूमिंग कल्टीवेशन, तो ये याद रखने वाली बात है, केयरफुल इसको याद रखना। अब देखो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो डेट मैक्सिको में इसको मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में इसको बोला जाता है लेजेंट। ओके, तो ये याद करने वाली बात है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो लर्न इट प्लीज़। So when I'm saying in video that it is very important, it means you have to go through it before your exams also. I have put now 2 questions from do you know and this type of the boxes. So maximum students has attempted wrong. So it shows me that all of you are not listening my videos thoroughly, because always before telling before explaining it, I'm always saying that read it thoroughly. Okay, it is very important, so be careful now. Now the second part is nomadic herding. Nomadic herding is practiced in the semi arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India. सेमी एरिड मतलब यहाँ पर ना ज़्यादा ड्राई होता है ना ज़्यादा वहाँ पे वेट होता है, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं लाइक कश्मीर, जम्मू, राजस्थान एक्सेट्रा। ओके, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डमैन्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो हर्डमैन्स होते हैं भेड़े बकरी चारने वाले, ये एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एनिमल्स अपने के साथ उनके भोजन और उनके फोडर और उनके पानी के लिए, फोडर मतलब उनका चारा जो जानवरों का आता है, ठीक है, तो उसको घूमते रहते हैं इधर लॉन्ग डिफाइंड रूट्स, अपने अपने रूट्स बना के वहाँ पे चलते रहते हैं इकट्ठे ही वो। तो यहाँ पर शीप, कैमल या गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। ये जो कैमल, ये सारे जानवर जो हैं वो रियरली इनके साथ कॉमनली रियर्ड होते हैं, पाले जाते हैं इनके द्वारा। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज़। ओके, नाउ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल से ही पता चलता है, कमर्शियल मीन्स कि बिजनेस से रिलेटेड होगी, व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। ओके, so commercial farming crops are grown and animals are reared for sale in market। commercial farming में क्या होता है,
फसलें उगाई जाती हैं, एनिमल्स को पाला जाता है, कहाँ पर? बाज़ार में बेचने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लैंड कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी जो कैपिटल है वो बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ की जाती है। अब इस काम के लिए क्या कहते हैं? मशीन्स। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. Now we will read one by one about this. In commercial grain farming, commercial farming includes commercial grain farming. ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे. In commercial grain farming, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. कमर्शियल पर्पस के लिए ही, यानी कि मार्केट में जाकर बेचने के लिए, पैसा कमाने के पर्पस से ये उगाई जाती है. व्हीट एंड मेज आर द कॉमन कमर्शियली ग्रोन दैट ग्रेन्स. मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over thousands of acres. तो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में ये फैला हुआ इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे फार्म होते हैं, वहाँ पर ये खेती की जाती है, ठीक है. तो सीवर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण सीवर विंटर पड़ती है, तो उसके कारण क्या होता है, वेदर में सिर्फ एक आधी सिंगल फसल ही वो लोग उगा पाते हैं वहाँ पर. अब नेक्स्ट इसमें था, हमने पढ़ा यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग. अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? द लैंड इज़ यूज फॉर द ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Okay. Now है next plantation. Plantation agriculture क्या था? Other type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana, cotton are grown. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. इनके लिए क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर और कैपिटल दोनों की ज़रूरत पड़ती है. मेहनत भी बहुत है, पैसा भी बहुत है. दे प्रोड्यूस मैनी मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज, या तो वो खुद अपने फार्म चलाती हैं नियर बाई फैक्ट्रीज में, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. तो ये जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो बहुत ज़रूरी होता है हर तरह की फार्मिंग में. तो मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स, राइट. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में कि मेजर क्रॉप्स कहाँ पर हैं. यहाँ पर दूसरा जो हमारा है पार्ट इसका लेसन का, लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर का एंड होता है. लिसन थॉरली, केयरफुली and the parts which are given in boxes, thoroughly read it, listen it, okay, and just underline these points on your book so that it will be easy for you before the exams. Okay, thank you.